really a controversy theory or it is just a coincidence? I don't know. This might be a coincidence, but I am just here to save your money if you're looking into these fragrances. Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. तो हुआ ये that I got curious about Aquilina Pink Sugar because अभी तो नहीं लेकिन आज से 5 साल 6 साल पहले every perfume reviewer was raving about Aquilina Pink Sugar. और जब मैंने देखा कि Aquilina Pink Sugar का sample मिल रहा है our fragrances पे, I was like, this is my chance. I need to know. I was like super curious. I did not want to invest in a full bottle, but I was super curious how Aquilina Pink Sugar smells. And that is when I ordered this sample. Just take a minute. Before I spray this, let's look at the notes of Aquilina Pink Sugar. Okay, so it has the top notes of raspberry, orange, bergamot, and fig leaf. Middle notes we have cotton candy, licorice, strawberry, red berries, and lily of the valley. Base notes we have caramel, vanilla, musk, tonka bean, and sandalwood. बहुत ज़्यादा उलझा हुआ note structure है. आप इसको देखने के बाद ये आइडिया नहीं लगा सकते कि ये किसके जैसी स्मेल करती होगी. व्हेन आई गो इन दी सिमिलर फ्रेग्रेंसेस टू दिस, वहां पे भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने इंटरनेट से सर्च की है और मैं यहाँ बैठ के आप लोगों को बता रही हूँ. दिस इज समथिंग दैट आई हैव रैंडमली फाउंड आउट. सो व्हाट आई वांट टू से इज माय क्यूरियोसिटी died down the moment I smelled this fragrance because I was expecting something, I don't know, something very burnt, sugary out of this, जैसे कि सब explain करते थे. But when I smelled this, I was like, it is exactly similar to Kissa Delicious from Paris Corner. अब Kissa Delicious किसका dupe है उस बारे में कभी कोई बात नहीं करता because nobody has figured it out yet. और लेट्स से कि किसी के दिमाग में क्लिक ही नहीं हुआ होगा क्योंकि एक्विलिना आज से 5 साल पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी. बट नाउ पीपल हैव मूव्ड ऑन टू दीज मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस एंड एवरीथिंग. और अगर इनका नोट स्ट्रक्चर देखें ना, let's look at the notes of Kissa Delicious ones. Okay, so it has whipped cream, orange, dark chocolate, marshmallow, coconut, jasmine, vanilla and musk. अब अगर आप दोनों का कनेक्शन देखने की कोशिश करो ना, तो इनके नोट स्ट्रक्चर में देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन टू ईच अदर. बट दिस वन इज सो डैम सिमिलर टू Aquilina Pink Sugar. एंड देन लेट मी गेट अ स्ट्रिप, ओके, एंड लेट मी स्प्रे दिस वन एज वेल. मुझे ना पेंसिल लेके बैठना चाहिए कि कौन सी स्ट्रिप पे कौन सा है ऑनेस्टली. ओके, Kissa Delicious, Aquilina Pink Sugar, they're literally the same fragrances. There is no difference whatsoever to my nose in these fragrances. I have a detailed review on Kissa Delicious. I would just say that Kissa Delicious ना थोड़ी सी ज़्यादा एक स्क्रीचीनेस उसमें है. मैं ये बात कहना चाहूँगी, इसलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि ये थोड़ी सी एक परफ्यूमी फ्रेग्रेंस है और इसका परफ्यूमी फैसेट थोड़ा सा ज़्यादा फॉरवर्ड है. ऑन द अदर हैंड एक्विलिना थोड़ी सी स्लाइटली म्यूटेड है इसके कंपैरेटिवली और वो स्क्रीचीनेस यहाँ पे थोड़ी सी कम है तो पर कम है. दिस राइट नाउ Aquilina Pink Sugar is kind of smelling like a beautiful, sweet, sugary, citrusy fragrance, lemony fragrance, which is more on the gourmand lines, and it's not a super perfumey fragrance. This on the other hand, इसका perfumey touch जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है. But then this also orangey, chocolatey fragrance, same sweet vanilla in the dry down along with the citrusiness in the top. ये हमने sort कर लिया कि ये दोनों fragrances काफ़ी similar हैं एक दूसरे के. अब हुआ क्या, इसके बाद मैं एयरपोर्ट गई and आपको पता है कि जो फ्रेग्रेंसेस जनरली यहाँ स्टोर्स में इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं उनको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एयरपोर्ट पे ट्राई करूँ. सो ऑन द एयरपोर्ट डोल्चे एंड गबाना का डिवोशन एंड डिवोशन इंटेंस दोनों रखा था. सो आई वाज लाइक नो, नॉट डिवोशन इंटेंस, लेट मी जस्ट ट्राई डिवोशन फर्स्ट. एंड आई स्प्रेड इट हियर, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत देर तक लास्ट करती हैं फ्रेग्रेंस और आप एक आइडिया ले सकते हो उनका कि वो किस तरह की हैं. बाद में भी जाके उनको स्मेल करोगे ना तो दे रियली स्टे हियर. बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू दैट. अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है ना तो फोल्ड्स में मत करो यार, डोंट डू दिस बिकॉज
मैंने अभी एक लाइव भी किया था, उसमें भी बताया था स्किन पे मत करो, स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, मेरा हो चुका है। आई एम ट्राइंग टू रिस्टोर इट दीज डेज एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं स्किन पे परफ्यूम्स ना ही ट्राई करूं। बस यहाँ पे मैं ट्राई कर लेती हूँ हाथों पे, बट माई आर्म्स आई डू नॉट ट्राई देम ऑन माई आर्म्स। तो जब मैंने डोल्चे एंड गबाना का डिवोशन ट्राई किया, नाउ लेट्स लुक एट द नोट्स ऑफ दैट एज वेल। मेरे पास है नहीं डिवोशन, बट क्योंकि मैंने उसको पूरा दिन लगा के रखा, आई हैव अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट दैट फ्रेग्रेंस इज लाइक। डिवोशन हैज द टॉप नोट्स ऑफ कैंडीड लेमन, middle notes of panna cotta, orange blossom and rum, and then base notes has vanilla. इनमें भी दोनों में थोड़ा सा एक बूजी टच है जो कि इसको एक परफ्यूम ही फील देता है। जब मैंने उसे ट्राई किया था तो मुझे बस 2 डिफरेंसेस लगे थे इसमें और उसमें। वो ऑब्वियसली एक ज्यादा रिफाइंड फ्रेग्रेंस है, बेटर क्वालिटी फ्रेग्रेंस है। ये आपको 1500 रुपए में मिलती है या 1700 रुपए में मिलती है, तो क्योंकि प्राइसेस लो हैं तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी डिवोशन की है, दैट्स ऑब्वियस। और इसका जो ओपनिंग का ऑरेंजी नोट है वो वहां पे कैंडीड लेमन नोट के साथ रिप्लेस हो गया है, तो इसीलिए वो थोड़ी सी ज्यादा आई वुड से कि थोड़ी लेमन पाउंड केक की लाइंस पे लगती है, बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली अ लेमन पाउंड केक फ्रेग्रेंस, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। वो भी थोड़ी सी परफ्यूमी ही है और उसका ड्राई डाउन ओपनिंग भले ही उसकी डिफरेंट हो, बट ड्राई डाउन उसका इतना सिमिलर है एक्वालिना पिंक शुगर और किस्सा डिलिशियस के साथ that my mind was blown. I was like, it's a reformulation, literally a reformulation of Aquilina pink sugar in both these fragrances, this and Devotion. I will try getting a sample of Devotion and proving my conspiracy theory right, but I'm telling you that if you want a similar fragrance of Devotion, you need not spend that much of money and you can get it in here or in Aquilina pink sugar. अब जब मैं इन दोनों को स्मेल कर रही हूँ ना ड्राई डाउन में, दे आर एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली। और बिल्कुल यही फील है डिवोशन का ड्राई डाउन में जाते जाते। वो इनिशियली शायद एक लेमन पाउंड केक जैसी लगती होगी, बट ड्राई डाउन में जाते जाते वो भी ऐसी ही हल्की सी फ्लोरल टच वाली वैनिलिक स्वीट पाउडरी फ्रेग्रेंस में कन्वर्ट हो जाती है। एंड इफ यू वांट टू अचीव दैट ड्राई डाउन, यू वांट टू स्मेल लाइक डिवोशन, you don't have to spend that coin on it. So that's the whole idea of this video today. And मैंने जब ये सब फाइंड आउट किया था ना, पहले तो I was shocked to know कि किस्सा डिलिशियस उसका कितना सिमिलर है, and the biggest of the reviewers have not figured it out. And then after that जब Aquilina pink sugar आया, then I was like more shocked कि Aquilina भी उसका सिमिलर है। I was like God, ये इतना ज्यादा रिफॉर्मुलेशन या रीपैकेजिंग क्यों चल रहा है फ्रेग्रेंसेस का, या इतनी ज्यादा इंस्पिरेशन क्यों ली जा रही है पुरानी फ्रेग्रेंसेस, and how is not anybody figuring that out? So probably those reviewers who love Devotion have never used Aquilina just like me, but some of them have used Kissa Delicious, क्योंकि जो एक क्रीमी कोकोनटी वो सब जो इसमें बोलते हैं ना, मुझे तो उसमें यार कुछ ऐसा लगता नहीं है इसमें क्रीमी कोकोनटी वाला। हाँ ठीक है, इसकी एक सॉफ्ट वाइब है, but with a very perfumey touch to it. So that was my conspiracy theory on the similarity of these 3 fragrances. I hope this video somehow helped you. Comment section में बताते जाइए और कौन से reviews आप देखना चाहेंगे, especially Indian perfumes के, because I just feel that they are more affordable on your pocket. लेकिन यार थोड़े से अच्छे वाले perfume suggest करना, ये मत बोलो कि Ramsons और ये Engage के ये ऐसे generic perfumes नहीं, कुछ अच्छा, you know. So do that. I will see you in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good. Have a great day all. Bye bye. Mwah.